Dear students, yesterday we had done some questions of exercise 11.2. Today we will do the remaining questions. So students, see here, question number 4. Find the angle between the pair of lines. The pair of lines are r is equal to 2i minus 5j plus k plus lambda times 3i plus 2j plus 6k. R is equal to 7i minus 6k plus mu times I plus 2j plus 2k. So student, we have to find the angle between these two lines. So the solution of question number 10. Here this is a given equation. So comparing the given equation with r is equal to a1 plus lambda times b1, r is equal to a2 plus lambda times b2. So students, compare the given equation with this general equation. We have here b1 is equal to r is equal to a plus lambda times b. So r is equal to a1 plus lambda times b1. Here b1 is 3i plus 2j plus 6k बच्चों. और b2 is r is equal to a2 plus mu times b2. b2 is I plus 2j plus 2k है बच्चों. So we have to find the angle between these two lines. We know that cos theta is equal to modulus b1 dot b2 divided by magnitude of b1 magnitude of b2 है बच्चों हमारा फॉर्मूला एंगल्स फाइंड करने के लिए. So b1 3i plus 2j plus 6k dot b2 I plus 2j plus 2k है. So मैग्नीट्यूड ऑफ b1 is b1 का मैग्नीट्यूड आप लोगों ने वेक्टर में किया है. b1 का मैग्नीट्यूड लेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और b2 का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है बच्चों. नेक्स्ट है बच्चों i डॉट i 1 होता है. सो 3 1 जा 3 j डॉट j 1 2 2 जा 4 प्लस 6 2 जा 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 3 जा 9 प्लस 4 प्लस 36 under root of 1 plus 4 plus 4 है बच्चों. तो 16 से 19 हुआ बच्चों. अंडर रूट ऑफ 49 इंटू अंडर रूट ऑफ 9. मैं इसको रफ करती हूँ. तो 19 इंटू 7 इंटू 3 हुआ बच्चों. cos theta is equal to 19 by 21 हुआ बच्चों. तो cos theta और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 19 by 21 है बच्चों. ये हमारा एंगल बिटवीन टू लाइन्स है बच्चों. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that the line 1 minus x by 3 7y minus 14 by 2p equal to z minus 3 by 2 and 7 minus 7x by 3p equals to y minus 5 by 1 equals to 6 minus z by 5 are at right angles. नेक्स्ट हमने p का वैल्यू फाइंड करना है बच्चों. such that these two lines are at right angle means these two lines are perpendicular to each other. So we will find the value of p. So बच्चों गिवन इक्वेशन इज दिस. तो ये इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है बच्चों, इसलिए हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा. तो फर्स्ट मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करूंगी. तो
minus x minus 1 by 3 is equal to 7 common y minus 2 by 2p is equal to ये ठीक है बच्चों z minus 3 by 2 और x minus 1 by minus 3 y minus 2 by 2p by 7 z minus 3 by 2 है बच्चों। आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आइए बच्चों, x minus x1 by a, y minus y1 by b, z minus z1 by c के फॉर्म में आ गया। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट रखती हूँ। तो नेक्स्ट हम सेकेंड को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो माइनस 7 कॉमन x माइनस 1 बाय 3p इज इक्वल टू y माइनस 5 बाय 1, ठीक है। तो इसको मैं माइनस z माइनस 6 करूँगी बाय 5। तो x माइनस 1 बाय 3p बाय माइनस 3p बाय 7 इज इक्वल टू y माइनस 5 बाय 1 इज इक्वल टू z माइनस 6 बाय माइनस 5 है बच्चों। तो ये भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आइए बच्चों। Therefore, direction ratios of line first and second are, अब ये हमारा A1 बन गया, ये A1 B1 C1 बन गया बच्चों। A1 हमारा है -3, B1 है 2p by 7 और C1 है 2। सिमिलरली A2 है बच्चों -3p by 7, B2 है 1 और C2 है -5 है बच्चों। तो here it is given that these two lines are at right angle, it means they are perpendicular. So अब perpendicular वाला हम कंडीशन लगाएंगे, since the given lines are at right angles means perpendicular, therefore A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0। ये हमारा कंडीशन है परपेंडिकुलरिटी वाला। when two lines are perpendicular then this sum will be equal to 0। so A1 क्या है बच्चों, -3 into -3p by 7 plus B1 2p by 7 into 1 plus C1 2 into -5 equal to 0 है बच्चों। तो माइनस माइनस प्लस 3 3 9p by 7 plus 2p by 7 प्लस माइनस माइनस 10 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो 7 कॉमन एलसीएम 9p प्लस 2p, मैं 10 को राइट साइड पे शिफ्ट करती हूँ 10। तो 10 11p by 7 इज इक्वल टू 10 और 11p इज इक्वल टू 70, p इज इक्वल टू 70 by 11। ये रहा बच्चों आप लोगों का p का वैल्यू when two lines are perpendicular और when two lines are at right angles। नेक्स्ट है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है बच्चों, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस r is equal to I plus 2j plus k plus lambda times I minus j plus k or and r is equal to 2I minus j minus k plus mu times 2I plus j plus 2k। On comparing the given equation with r is equal to a1 plus lambda times b1 and r is equal to a2 plus mu times b2। तो बच्चों हम गिवन इक्वेशन इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो हमारा ये बन गया a1 b1 a2 b2 बच्चों। तो हियर a1 is equal to I plus 2j plus k, b1 is equal to I minus j plus k, a2 is equal to 2I minus j minus k and b2 is equal to 2I plus j plus 2k है बच्चों।
तो हमें पता है फॉर्मूला, वी नो दैट टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस d is equal to modulus b1 cross b2 dot a2 minus a1 divided by magnitude of b1 cross b2 है बच्चों। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है बच्चों। तो इसको मैं फर्स्ट रखती हूँ। तो हम पहले इस वैल्यू को अलग अलग से फाइंड करेंगे। नाउ पहले a2 माइनस a1 में यहाँ कर लेती हूँ। a2 माइनस a1 क्या है बच्चों? a2 में से a1 को माइनस करना है। 2i माइनस i मीन्स i माइनस -1 माइनस 2 माइनस 3j माइनस 2k बनेगा बच्चों a2 माइनस a1 जो है। अब मैं b1 क्रॉस b2 करती हूँ। b1 क्रॉस b2, तो ये आप लोगों ने वेक्टर में किया हुआ है। i कैसे फाइंड करना चाहिए? i j k b1 क्या है बच्चों? इसका कोफिशिएंट आएगा 1 माइनस 1 1, i j का कोफिशिएंट 2 1 2 आएगा बच्चों। तो हम b1 क्रॉस b2 फाइंड करेंगे। i डिटर्मिनेंट ऑफ ये वेनिश हो जाएगा। तो -2 -1 माइनस j 2 माइनस 2 प्लस k, इसको वेनिश करो तो 1 प्लस फार्मूला माइनस, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2 बन गया बच्चों। तो ये -3i माइनस 0j प्लस 3k है बच्चों। हमारा आया b1 क्रॉस b2। अभी हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 भी चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड हम i j कोफिशिएंट को स्क्वेयरिंग करते थे। स्क्वेयर 0 हम नहीं लेंगे, 3 का स्क्वेयर। तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 9 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 18। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ये सारा वैल्यूज पुट करो बच्चों। तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2 क्या है हमारा? b1 क्रॉस b2 जो है ये है बच्चों। तो मॉडुलस -3i माइनस 0j प्लस 3k डॉट a2 माइनस a1 क्या है बच्चों? i माइनस 3j माइनस 2k है बच्चों, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 18 है मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 जो है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट i डॉट i1 -3 -0 प्लस माइनस 3 to the 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 18 है बच्चों। तो ये आ गया 6 -9 बाय अंडर रूट ऑफ 18 है बच्चों मॉडुलस। तो इसको हम 9 बाय 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। 3 3 9। ये मैंने मॉडुलस के बाहर निकाला तो माइनस जो है प्लस बनेगा। 3 बाय अंडर रूट ऑफ 2 है बच्चों। तो मोस्टली हम इरेशनल नंबर को नीचे नहीं रखते, तो हम रेशनलाइज करेंगे √2 से ऊपर नीचे √2 इंटू √2। तो 3√2 बाय 2। देयरफॉर हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d आया 3√2 बाय 2 है बच्चों। So students, next we will study about equation of a plane. इक्वेशन ऑफ प्लेन्स स्टडी करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है, फिर भी मैं बोर्ड पे दिखाती हूँ अच्छी तरह से। तो ये हमारा एक्सिस हुआ x y z, ये हमारा प्लेन ओरिजिन। तो है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म है बच्चों। तो इसमें गिवन क्या होता है? नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन होता है बच्चों इसमें। तो मैं यहाँ पे ये ON जो है नॉर्मल वेक्टर है जो ओरिजिन से पास होता है, नॉर्मल टू द प्लेन है बच्चों ON, नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। हियर d, स्मॉल d इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है
डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है बच्चों, ओ से लेके एन तक डी है बच्चों। तो यहाँ पे मैं कोई पॉइंट पी लेंगे इक्वेशन फाइंड करने के लिए, आर्बिट्रेरी पॉइंट पी हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई जेड है बच्चों। तो ओ पी को ज्वाइन करो ओ एन को, तो ओ पी का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर आर पी एन, इसका डी है बच्चों। तो ओ एन हमारा नॉर्मल वेक्टर है जो ओरिजिन से पास होके प्लेन पे परपेंडिकुलर है, और एन केफ है यूनिट नॉर्मल वेक्टर है बच्चों अलोंग ओ एन। सो वी कैन राइट वेक्टर ओ एन एस डी एन केप बच्चों, ओ एन एस डी एन केप। नाउ इन ट्राइंगल OPN, in triangle OPN, OP plus PN is equal to ON है बच्चों, by triangle law of vector addition, जो by triangle law of vector addition ये अप्लाई किया बच्चों। OP क्या है? OP का पोजीशन वेक्टर है R, PN हमें पता नहीं है बच्चों, PN वेक्टर क्या है, और ON है, ON हमने लिया है G एन केप, और PN इज इक्वल टू G एन केप माइनस R है बच्चों। तो बच्चों PN आया D एन केप माइनस R है, D जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। तो सिंस PN परपेंडिकुलर ON है बच्चों, ये PN और ON जो है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है बच्चों। PN वेक्टर PN जो है अलोंग द प्लेन है बच्चों, और ON जो है मैंने पहले बताया था ON जो है नॉर्मल टू द प्लेन है। PN जो है अलोंग द प्लेन है और ON जो है नॉर्मल टू द प्लेन है, ये एक दूसरे पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। दैट इज वाई PN डॉट ON इज इक्वल टू 0 बनेगा बच्चों, क्योंकि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है बच्चों, ये आप लोगों ने वेक्टर में किया हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों PN हमारा है GN, यहाँ GN केप है बच्चों, PN ये GN केप माइनस R है डॉट ON हमारा है DN केप इक्वल टू 0 है बच्चों। तो डी स्क्वायर डी स्केलर है, n डॉट जो है वेक्टर के बीच में होता है, वेक्टर R डॉट डी एन केप इक्वल टू 0 है बच्चों। तो डी स्क्वायर हुआ n डॉट n 1 होते हैं माइनस डी R डॉट n, डॉट जो है वेक्टर के बीच में होता है, ये डी स्केलर है बच्चों इक्वल टू 0, और डी R डॉट n केप जो है हमारा आया डी स्क्वायर, और इम्प्लाइज R डॉट n कैप इज इक्वल टू डी है बच्चों। ये रहा हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ना बच्चों इसके कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे हम। एज यूजुअल हम R लेते थे xi प्लस yj प्लस z के बच्चों, और n केप जो है हम वेक्टर में लेते थे li प्लस mj प्लस n के बच्चों। यूनिट वेक्टर जो है हमें डायरेक्शन कोसाइंस देते हैं बच्चों, नॉर्मल वेक्टर जो है डायरेक्शन रेशोस देते हैं, ये आप लोगों ने वेक्टर में किया हुआ है। तो ये वैल्यूज जो है आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे बच्चों। तो xi प्लस yj प्लस z के डॉट li प्लस mj प्लस n के इज इक्वल टू डी है बच्चों। तो i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1 होता है। तो lx हुआ प्लस my हुआ प्लस nz इक्वल टू d। ये रहा हमारा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। और बच्चों ये r डॉट n कैप इज इक्वल टू डी, इसमें r जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट,
एनी पॉइंट। ये n कैप जो है नॉर्मल यूनिट वेक्टर है बच्चों, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है बच्चों, और d है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है बच्चों। आप लोग इस कभी कभी ऐसे गिवन होते हैं बच्चों, r डॉट वेक्टर n होता है इज इक्वल टू d, तो r डॉट n और r डॉट n कैप इज इक्वल टू d, इन दोनों में है तो दोनों वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म में है, बट r जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट सेम है बच्चों। n जो है इसमें तो हमारा नॉर्मल यूनिट वेक्टर बच्चों, ये नॉर्मल वेक्टर है बच्चों, नॉर्मल वेक्टर, ओनली नॉर्मल वेक्टर है, और ये d जो है कांस्टेंट है बच्चों। आप लोग क्वेश्चन करते समय कंफ्यूज नहीं होना, अगर n नॉर्मल वेक्टर गिवन है तो आप लोग कैप के साथ गलती से ये इक्वेशन यूज नहीं करना। अगर हमें गिवन है नॉर्मल वेक्टर तो आप लोग यूनिट वेक्टर में चेंज करो बच्चों। हमें पता है n यूनिट वेक्टर में कैसे चेंज करते हैं, n कैप इज इक्वल टू वेक्टर n बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n से, इससे आप लोग पहले चेंज करेंगे। इसी इक्वेशन को बोथ साइड्स n वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n से आप लोग डिवाइड करके n कैप में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये n कैप बन जाएगा। तो ये हमारा बन गया ये d जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है बच्चों। अब हमने इक्वेशन ऑफ अ प्लेन करना है जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है। कोलिनियर पॉइंट्स मैंने कल आप लोगों को समझाया था कि 3 or more points are said to be collinear when they lie on the same line। तो ये प्लेन जो है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होके जा रहे हैं बच्चों। इसका वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन बनेगा r माइनस ए क्रॉस b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए इज इक्वल टू 0, ये इसका वेक्टर इक्वेशन बनेगा बच्चों। और कार्टेशियन फॉर्म में determinant of x minus x1, y minus y1, z minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1 is equal to 0 बनेगा बच्चों। ये है वेक्टर फॉर्म में इस तरह से इक्वेशन आएगा, कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह से आएगा बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन्स है बच्चों। ये प्लेन जो है पास हो रहा है इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। फर्स्ट प्लेन ये है बच्चों π1, सेकेंड प्लेन ये है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से और एक ये प्लेन π3 जो है पास होके जा रहा है। तो इसका वेक्टर इक्वेशन बनेगा बच्चों r डॉट n1 प्लस लेमडा टाइम्स n2 प्लस d1 प्लस लेमडा टाइम्स d2, और इसका कार्टेशियन फॉर्म में